Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to everyone. How are you all? I hope that you are fine, right? So, students, the previous topic is that we have been discussed was energy resources and what were energy resources, how we get energy resources from. ठीक है, the main resources is natural gas, oil and coal. How we get them, how we use them, how we get energy from them, thermal energy through combustion, through ignition. So we have been discussed these in our previous topic, right? So on chapter number 3, energy resources, our next topic is fossil fuels and oil and natural gas. Now, what is fossil fuels? What is fossil fuel? You have been heard about dinosaurs, right? So what is dinosaurs, students? Do you have any about dinosaurs? So okay, I'll tell you what is dinosaurs, how they comes from, and why we can't see dinosaurs now, and where have been dinosaurs gone, and why we know about dinosaurs. Okay, and how we get our fuels from. So I'll tell you some tragic things about this. Okay, now what is dinosaur? Dinosaur, I'd say before 6 million or trillions years ago. It's from millions or trillions years ago, right? When dinosaurs were living on the earth. So what happened? There are different types of dinosaurs. Some are very big dinosaurs, some are small, some are medium, some have large necks, some have long tails. There are different types of dinosaurs. So how they become, how they dead, or how they become gone from the land or from the earth. Once a stone came into the earth and strike to the strong a very big stone come into the earth, and it strike with the earth, our planet, and then due to this what happened? There was a blast in the universe, and due to this blast, each and every dinosaurs, animals, plants, what happened? They all become burned, because there was a burn fire in the earth. So these dinosaurs were burned, and animals were burned, plants were burned, and these dinosaurs were dead, because at that time there were no human beings living. So what they eat? Dinosaurs used to eat grass, plants and fruits, and some of them also eat meat, and they meet the meat of animals. So what happened when the dinosaurs died? Thousands of years has been passed, and how we know about dinosaurs? Because as the dinosaurs died, ठीक है, एज द डायनासोर्स डाइड, जब वो मर गए तो क्या हुआ? वो उनका गोश्त आहिस्ता आहिस्ता सालों जानवर खाते रहे. जब गोश्त उनका ख़त्म हो गया, देन व्हाट इज़ रिमेनिंग पार्ट? बोन्स. उनके बोन्स रह गए. ठीक है, सालों गुजरते रहे, उस पर मिट्टी, धूल, विंड, पानी, जानवर, दरख्त सब गिरते रहे. इस तरह ना, जैसे ये डायनासोर यहाँ पे मर गया, इसके ऊपर डिफरेंट लेयर्स आती रहीं. इसी तरह डायनासोर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल डायनासोर्स थे, ठीक है, वो अटैक आया, वो मर गए. फिर क्या हुआ? उनसे हड्डियाँ बन गई. ठीक है, उनकी हड्डियाँ बन गई, वो सरफेस पे आ गए. फिर क्या हुआ? फिर उनके सरफेस जो है, उसके ऊपर गंद, मिट्टी, धूल सब कुछ आता गया, और वो उनका जो था, वो डायनासोर क्या था? बरेड होते जा रहे थे. उनके ऊपर डिफरेंट लेयर्स हो रही थी. एज अ थिंग आप लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे डायनासोर्स हैं और उनके ऊपर डिफरेंट लेयर्स आ गई. यहाँ पे फिशेज़ हैं, यहाँ पे दूसरे एनिमल्स हैं, यहाँ पे प्लांट्स हैं, डिफरेंट फॉसिल्स आ गए. तो इससे हम लोगों को क्या मिलता है? इससे हम लोगों ने जब गए, तो उसको हम लोगों ने जाके ऑब्ज़र्व किया, हम लोगों ने डिगिंग की, तो हम लोगों ने इस तरह के इनके ढांचे देखे, एनिमल्स के, डायनासोर्स के. इसी तरह हमें पता चला डायनासोर्स हैं. अब डायनासोर्स थे, एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, सालों गुजर गए, करोड़ साल गुजर गए. नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व? वी कैन फाइंड फ्यूल. वी कैन ऑब्जर्व कि हम लोग इनसे फ्यूल निकाल सकते हैं, इनके बॉडीज से. तो दिस इज़ द फ्यूल वी get it from. The fuel we get fuel, there are three main fuels: oil, natural gas and coal. And how we get it? We get it through animals, dead animals, through dead plants, and through dead animals and through dead plants, right? Now let's just discuss
व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? फॉसिल फ्यूल्स आर फ्रॉम डिकेड लिविंग थिंग। डिकेड मतलब बहुत साल पुराने मरे हुए या जो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करते, उनके डिकेड यानी कि उनके बॉडी के जो होते हैं हड्डियों से हम लोग जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से फॉसिल्स बनता है, ठीक है। Now, coal, oil and natural gas are the three main fossils fuel. Right now, the formation of coal. coal कैसे बना, ठीक है, coal कैसे बना? Now let's just discuss. coal was formed. coal कैसे बना? coal was formed फ्रॉम द रिमेनिंग ऑफ प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल प्लांट से सालों पहले, ठीक है, उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता था, उसमें एनर्जी स्टोर होती थी, सब कुछ होता था। टाइम टू टाइम क्या होता गया कि ये प्लांट जो थे वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। डिस्ट्रॉय हो गए तो हम लोगों ने क्या देखा, उनके अंदर क्या था, रिमेनिंग क्या था, जो था वो एनर्जी थी, रिमेनिंग एनर्जी थी। इसी तरह वो क्या हुआ, grew in the huge forest about 3000 years ago. कोल कैसे हुआ, जब रिमेनिंग प्लांट्स जो इन huge forest about 3000 millions ago years ago जो थे प्लांट्स जो थे। नाउ हम लोगों को कोल कैसे मिला? कोल हम लोगों के पास प्लांट्स का जो प्लांट जो थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो जो प्लांट्स थे, ठीक है, जब वो क्या हो गए, जब वो थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो जब वो प्लांट्स डाई, व्हेन द प्लांट्स डाइड दे फेल एंड बिगन टू रॉट। जो तब उनका जो रिमेनिंग पार्ट रॉट यानी कि जब उनका बहुत ज़्यादा वो ख़राब हो गए, जब वो डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है, तो फिर जब वो उनका रॉड बन गया, रॉड बन गया मतलब उन पर डिफरेंट लेयर्स आते गए, मिट्टी धूल आते गए, बिन्स आते गए, डिफरेंट एनिमल्स बन गए, उनका एक रॉड बन गया, उनका एक मटीरियल, ऐसा मटीरियल जो कि जिसमें उनका कुछ भी नहीं रह जाता, ठीक है, ऐसे मटीरियल जो सूख जाते हैं, जैसे जैसे हड्डियाँ बन जाती हैं, सिर्फ डायनासोर्स की हड्डियाँ रही थी, उससे प्लांट्स का क्या बन जाता है, रॉड बन जाता है, रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। द डिकेइंग प्लांट्स फॉर्म्ड अ थिक लेयर ऑन द वेट स्वैपी फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट। कह रहे हैं कि ये जो डिके प्लांट्स होते हैं, ये फॉरेस्ट पर इनका एक लेयर सा बन जाता है, ठीक है, कि इनका थिक लेयर बन जाता है, किसके ऊपर, स्वैम्पी फ्लोर्स ऑफ द फॉरेस्ट के ऊपर इनका एक लेयर बन जाता है, ठीक है। लुक लाइक दिस, एक इनके फ्लोर के ऊपर इनका एक क्या बन जाता है, वेट स्वैपी फ्लोर ऑफ फॉरेस्ट के ऊपर इसका एक थिक लेयर बन जाता है प्लांट्स का। फिर क्या आता है, द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, फिर इसके ऊपर बैक्टीरिया, सो प्लांट्स के ऊपर एक और लेयर आ जाती है, जो वो उसे क्या कहते हैं, बैक्टीरिया। प्लांट्स जब डिकेड हो जाते हैं, डीके होते हैं, उनके ऊपर क्या होती है, वो जो होते हैं किसके ऊपर, एक फॉरेस्ट के ऊपर, जैसे कि एक ज़मीन है उसके ऊपर प्लांट्स गिर गए, ज़मीन पे गिर गए, उसके बाद वो डीके हो गए, डीके होने के बाद एक्शन एक बैक्टीरिया का प्रोसेस होगा, उस पर बैक्टीरिया ग्रीन पार्टिकल्स आ जाएंगे, उससे वो क्या बन जाएगा, प्लांट्स चेंज इनटू पीट। नाउ व्हाट इज़ पीट? पीट इज़ यूज्ड एज फ्यूल। पीट्स को हम लोग फ्यूल में यूज़ करती हैं। इन सम कंट्रीज़ इट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल। सो ये कोल का फर्स्ट फॉर्मेशन होता है जब प्लांट्स की डीके होती है, उस पर बैक्टीरिया जो होती है लेयर बना देते हैं अपन बैक्टीरिया, उस पीट को हम लोग फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नाउ इनसे ये हुआ, ठीक है, डिस्ट्रॉय हुए, इससे क्या बना, ये बना, बैक्टीरिया का लेयर बना, ठीक है। नाउ ग्रेजुअली द लैंड सैंक्स एंड द वाटर कवर्ड इट। लैंड ने क्या किया, इस एरिया को, इस पीट को क्या किया, लैंड ने कवर्ड कर लिया विद द लेयर ऑफ वाटर, विद द लेयर ऑफ मड, मड मीन्स मिट्टी, एंड ग्रेवल वेयर लैड ओवर द डिकेइंग प्लांट्स, और नीचे दबते गए ये, और प्लांट्स के ऊपर या और चीज़ों के नीचे दबते गए, ठीक है। ना दिस डिकेइंग प्लांट्स, ये दबे हुए प्लांट्स, एज मोर रॉक्स वर लेड डाउन बाय द सीज अबव। कह रहे हैं कि बहुत सारा इसी तरह वो नीचे दबते गए, इस तरह बहुत सारे रॉक्स भी जो हैं, बहुत सारे पत्थर भी जो हैं इनके ऊपर पड़ते रहे, नीचे से नीचे जाते रहे, ठीक है, और ज़मीन की तह में चले गए, ठीक है। द प्रेशर ऑन द पीट्स लेयर, तो इस पीट के लेयर में जितना भी प्रेशर आएगा, ठीक है, वो इंक्रीज़ होता जाएगा टाइम टू टाइम, एंड द टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज, टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा और जो होगा प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो फिर इससे क्या होगा, इवेंचुअली ओवर मिलियंस ऑफ ईयर द डीके प्लांट्स फॉर्म्ड कॉइल। देन बिकॉज ऑफ दिस डीकेइंग ऑफ प्लांट्स वी फॉर्म कॉइल। कॉइल हमें कैसे बना, फॉर्मेशन ऑफ कोल कैसे हुई, प्लांट्स की डीके हुई, प्लांट्स की डीके के बाद हमारे पास डिफरेंट लेयर्स बनी, जिसको हम लोग पीट कहते हैं। पीस के ऊपर बैक्टीरिया पड़ा, फिर इसके ऊपर डिफरेंट लेयर्स आई, वो वाटर के नीचे जाती गई, सीज के नीचे एब्जॉर्ब होती गई, फिर पत्थर सी के अंदर, फिर बहुत सारे पत्थर थे, फिर और जानवर मरते रहे, फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ, प्रेशर आया, टेम्परेचर चेंज हुआ, ड्यू टू दिस थाउजेंड ऑफ ईयर्स के बाद हम लोगों को क्या मिला, उससे कोल मिला। कोल हमें कैसे मिला, डिफॉर्मेशन ऑफ प्लांट से मिला, ठीक है। नाउ ऑयल एंड नेचुरल गैस, हमारे पास फ्यूल के ऑयल,
कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, 3 मेन जो थे फॉसिल फ्यूल्स थे। कोल हम लोगों को कैसे फॉर्म किया वो हम लोगों ने पढ़ लिया ना, हाउ वी फाउंड ऑयल एंड हाउ वी फॉर्म नेचुरल गैस। जो हम लोग गाड़ियों में यूज़ करते हैं वो हमें कैसे मिला, मैंने बताया कि डायनासोर्स, प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये चीज़ें जब ज़मीन में दब जाती है इनसे हम लोग ये जो चीज़ें निकाल सकते हैं। कोल कैसे बना, प्लांट की डिफॉर्मेशन से। ना डायनासोर से क्या बना और एनिमल से क्या बना, हम लोग फॉसिल फ्यूल्स कैसे मिलते हैं। चलें लेट्स जस्ट डिस्कस। ऑयल वाज मेड फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वंस लिव्ड इन द सी। ऑयल भी हमें, यानी ऑयल इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ फ्यूल। ऑयल हमें कैसे मिला, जब यही माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, ठीक है, जिनको हम देख नहीं सकते, जो बहुत सालों पुराने थे, इनसे हम लोगों से, हम इन लोगों के 1000 ऑफ ईयर्स के बाद हम लोगों को जब ये रहते थे उससे हम लोगों को ऑयल मिलता है, ठीक है। और कैसे, कहाँ पे, सी में। एज देयर डेड बॉडीज़, देयर बॉडीज़ कलेक्टेड एज फ्रॉम देयर डेड बॉडीज़, उनकी डेड बॉडी से, एनिमल्स की, प्लांट्स की, उनकी डेड बॉडीज़ को क्या किया, कलेक्ट किया एट द बॉटम ऑफ सी वेयर दे वर कवर्ड। जो वो वहाँ पे बहुत कवर्ड थी, उनको बहुत ज़्यादा डिगिंग करके उन्होंने ये प्लांट्स और एनिमल्स की जो थी डीके और डाइड जो लेयर्स निकाले। विद दीज लेयर्स ऑफ सैंड एंड मड, जो मड के नीचे और सैंड के नीचे दबे हुए थे उन्होंने निकाला। नाउ व्हाट हैपन, थाउजेंड्स ऑफ ईयर द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट बिकम, थाउजेंड्स ऑफ ईयर के बाद क्या हुआ, दीज लेयर्स ऑफ सेडिमेंटेड बिकम वेरी थी, ये लेयर्स जो थी बहुत ज़्यादा थिक हो गई, ठीक है। दिस पुट द डिकेइंग ऑर्गेनिज्म अंडर द प्रेशर, इसकी वजह से, इस डिकेइंग पर्पस की, डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से क्या हुआ, प्रेशर पड़ता गया, हाई प्रेशर पड़ता गया, ठीक है। प्रेशर चेंज की वजह से टेम्परेचर चेंज हुआ और वो थिक ब्लैक क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट्स के सी में दब जाने से, सी के ऊपर डिफरेंट लेयर्स आ जाने से, प्रेशर आ जाने से, टेम्परेचर चेंज होने से, बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर के बाद जब उनको निकाला गया तो उसको आप उससे क्या मिला, वी फाउंड क्रूड ऑयल। ना ऑयल भी हम लोगों को मिल गया, हमसे कोल भी कैसे मिल गया, कोल प्लांट से मिला, प्लांट्स और एनिमल्स के माइक्रोस्कोपिक व्यू से, ठीक है, हम लोगों को क्या मिला, ऑयल मिला, ठीक है। क्रूड ऑयल मिला, कैसे मिला, जब वो मिट्टी में दफन हो जाती है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स गुजर जाते हैं, जब उनको डिग करते हैं, उनको मटीरियल कलेक्ट करते हैं, उनके मटीरियल से कलेक्ट करके हम लोगों को क्रूड ऑयल मिला। नाउ द लेयर of sand and mud turned into rock, the layers of sand and mud turned into rocks। now ये जो thousands of years ago जो बॉडी नीचे जाती गई उनके ऊपर मिट्टी पड़ती गई, तो वो एक सैंड और मड, वो जो मिट्टी और क्ले, वो जो रेत वगैरह थी, वो हार्ड रॉक्स में कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। जब जाहिर सी बात है मिलियंस और टन्स ऑफ ईयर्स गुजर जाएंगे, सेंचुरीज गुजर जाएंगी, तो वो सैंड नरम तो नहीं रहेगी, जाहिर सी बात है रॉक में कन्वर्ट हो गई, दैट इज़ नोन एज सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। दीज रॉक्स आर पोरस, फिर दीज रॉक्स आर नोन एज पोरस, दे हैव टाइनी होल्स, उनमें होल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, दे हैव टाइनी होल्स लाइक स्पॉन्जी विच अलाउ लिक्विड टू मूव स्लोली थ्रू देम, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट्स क्या वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो पहले थे, ठीक है। व्हेन दे डाइड, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स को क्या हुआ, दे डीके, वो डीके हुए समंदर में डूब गए, समंदर में रहे, समंदर की लेयर में गए, लेयर के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट लेयर्स आए, एनिमल्स की, प्लांट्स की, और मरते गए, और जानवरों की लेयर्स आई, मिट्टी आई, धूल आई, सैंड आई, पत्थर आए, दीज रॉक्स, देन आफ्टर सम टाइम दीज रॉक्स कन्वर्ट टू सेडिमेंट्री रॉक्स इज नोन एज पोरस, फिर उससे हम लोगों को क्रूड ऑयल मिला, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स से कहते हैं, फिर डिफरेंट होल्स हैं, टाइनी होल्स हैं, इसमें वाटर जा सकता है, आ सकता है, ठीक है ना। ऑयल rises porous rock until it meets a layer of impermeable rock. Oil, now उसमें liquid oil rises through porous rock until it meets a layer of impermeable rock which does not allow the liquid through। फिर ये चेंज हो गई हमारे पास impermeable rock में जो doesn't allow liquid through pass through it। फिर the oil is therefore trapped in pockets, गैस कलेक्टेड अबव द ऑयल बिकॉज इट इज़ लेस डेंसर। फिर इसी तरह हमारे पास ऑयल भी बन गया। ऑयल कैसे बना, जो पहले सेडिमेंट्री रॉक से वो कन्वर्ट हुए पोरस में, फिर पोरस में टाइनी होल्स से, फिर टाइनी होल्स के बाद वो चेंज हो गया इम्परमिएबल रॉक में, जिसमें से हमारे पास वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। फिर वो ऑयल जो था उसमें जो था वो क्या हो गया, ट्रैप्ड हो गया। फिर दिस ट्रैप्ड ऑयल गैस कलेक्ट अबव द ऑयल बिकम इट इज़ लेस डेंसर। फिर ये जो गैस था इसको कलेक्ट किया गया अबव द ऑयल, ठीक है, बिकॉज इट इज़ लेस डेंसर, ये लेस डेंसर होती है, इस तरह से हम लोगों को गैस मिला, ठीक है। ऑयल से ऑयल मिला, फिर ऑयल से गैस भी मिला, ठीक है। इट इज़ दीज पॉकेट्स ऑफ ऑयल एंड गैस दैट ऑयल कंपनीज लुक फॉर, ठीक है। ये ऑयल और ये वो पॉकेट्स और ये वो नेचुरल गैस है, दो कंपनीज जो है ढूंढ रही हैं, ठीक है। Now in this picture what we see, this is
फिर दिस इज़ पोरस रॉक यहाँ होता है। फिर पोरस रॉक के ऊपर यहाँ पर पोरस रॉक क्या होता है, इसमें टाइनी होल्स होते हैं, ठीक है, पोरस में टाइनी होल्स होते हैं, ठीक है। पोरस, दिस इज़ पोरस, यहाँ पे वाटर होता है, इसमें टाइनी होल्स होते हैं, वाटर कैन मूव। बट अबव दिस लेयर हमारे पास क्या है, सेडिमेंट्री, इसके ऊपर हमारे पास इनपरमिएबल रॉक होती है, जिसमें से वो नहीं गुजर सकते क्योंकि वो हार्ड होती हैं। वो यहाँ से हमें ऑयल मिलता है और ऑयल के ऊपर का जो लेयर होता है वहाँ से हमें गैस मिलता है क्योंकि इट इज़ लेस डेंसर। फिर इसको ड्रिलिंग करी जाती है, इसको रिग किया जाता है, ड्रिलिंग। These are then folded rocks, and these are impermeable rocks. This is impermeable rocks, this is porous rocks, and through this we can form gases. This is the whole process through how we get our fossil fuels from. I know this is a little bit difficult but easy topic. You can have a look at your books, you can understand it through this topic. So I hope आपको समझ आ गया होगा. Till then, take care and Allah Hafiz.